सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं सीमा कोहली जी, चंचल कुमार जी, प्रिया वेंकटरमन जी, तो उनको आमंत्रित करते हैं बैस पे। और हम अपने बोर्ड मेंबर श्री सुमन सिंह से उनको आमंत्रित करते हैं कि आप बुके देकर स्वागत करें सीमा जी का और चंचल जी का। और इसके साथ हम लोग आमंत्रित करते हैं अपने बोर्ड मेंबर प्रिया वेंकटरमन को आज के इस कार्यक्रम का एक ब्रीफ और बोध गया बिनाले के बारे में, चूंकि उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है, सो एक ब्रीफ आपके सामने रखेंगी प्रिया वेंकटरमन। Welcome, friends. Good evening. A dirty dormitory, an uneven ground. That is what the team of the first stretch of the Bodh Gaya Biennale had to work with. To convert the garbage-ridden ground to what the design team perceived it to be. Alongside the work of the grounds, we had the uphill task to convert the dormitory into a workable display space that met with our high standards. Cleaning it, covering all the windows, getting all beds out, and making it into an art space. The other part of this preparation was opening the artwork, assembling them, putting them in frames and stretchers, painting the venue inside out, getting security ready, making a work shift kitchen for the team and the workers. Alongside all this manual work, we had the massive task of guest relations, logistics, hotel and hospitality management, and invitation to the local administration, as well as taking them on board. I was invited, of course, as a special guest, and I had the good fortune of being there for the first edition, and it was just simply out of this world. I'm a Buddhist, I chant, and for me to be in Bodh Gaya, I was really looking forward to the entire experience and the way Vinay and his team had transformed the space, especially the main venue, which was actually a ramshackle old building. And you know, the whole thing had been repainted and it was just beautiful, and especially at night with all the installations. And I'm a performing artist, and this was such a beautiful introduction to the visual art for me. So on a personal note, it was just, the entire experience was so beautiful. The institution behind the Biennale is Canvas, an art trust that's based in Patna. We started this first edition with 100 named artists, 5 live performances of artists, 1 workshop, guests and dignitaries ranging from film stars to eminent people of the art world. The event was spread over 7 days. Now, after the second edition in 2018, we're ready to launch the third edition, and we hope that it'll be bigger and better than the last 2 editions. So welcome, and I wish the entire team all the very best. Thank you so much, sir, for being here, and Seema Kohli ji as well. So I'll leave it to them to introduce our curator for the third edition of the Biennale. थैंक यू प्रिया। बोध गया बिनाले के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें आप सबसे चूँकि शेयर करना मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि बोध गया बिनाले बिहार में जहाँ विजुअल आर्ट्स के लिए या दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, और ख़ासतौर पे टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ की आपको अगर आप आर्ट वर्क डिस्प्ले करना चाहते हो तो वहाँ तो आपको कुछ भी मिलना असंभव है। तो वैसी जगहों पे अगर हम लोग ने इनिशिएटिव लिया तो वह बड़े ही, हम लोगों ने कहना चाहिए कि हम लोगों ने हिम्मत का काम किया, बहुत डर कर किया कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। बहुत छोटी टीम थी और उस पर आमतौर पे जो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमसे सहमत भी थे असहमत भी थे, उन सबके साथ हम लोगों ने बिल्कुल एक वैचारिक, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोगों ने दोनों एडिशन को करने की कोशिश की। पहले एडिशन में हम लोगों ने
पीस जैसे विषय को रखा था, दूसरे एडिशन में हम लोगों ने माइग्रेशन जैसे इशू को रखा था। हम लोग के दिमाग में एक बात बहुत क्लियर थी कि हम लोग बिनाले के जरिए आर्ट और लाइफ दोनों के बीच के रिश्ते के की जो परतें हैं उनको हम लोग तलाशना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे कि आर्ट के बगैर जीवन नहीं चल सकता है या जीवन के बगैर आर्ट नहीं हो सकता है। जो भी हो, इन सब के जो अंतः संबंध हैं उन संबंधों की पड़ताल करने की कोशिश बोध गया बिनाले के दोनों एडिशन में की गई। और हम लोगों ने विषय भी, जो थीम भी हम लोगों ने इसी तरह से क्वाइन किया था कि जिससे कि हम लोग इस बहस में, इस डिस्कोर्स में जा सकें आर्ट के जरिए, अपने आर्ट वर्क के जरिए, अपने जो आर्टिस्ट टॉक हैं उनके जरिए, और जो आर्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, जिस तरह से विस्तार हुआ है, जिस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है विजुअल आर्ट का परफॉर्मेंस आर्ट की तुलना में, उन तमाम फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बोध गया बिनाले में हम लोगों ने ऐसी कोशिश की, चाहे वो परफॉर्मेंस के जरिए हो, वीडियोस के जरिए हो, हर फॉर्म का हम लोगों ने उपयोग किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने परफॉर्मेंस आर्ट को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रखा, उनके आर्टिस्टों से भी बात की। और हम लोगों ने बिल्कुल जो बोध गया या बिहार का जो अपना लोकल इश्यूज थे उन पे भी हम लोगों ने बात की, इन्वायरमेंटल जैसे इशू पे बात की। म्यूजियम हम लोग बना रहे हैं, बिहार में बन रहा है, आप जानते हैं बिहार म्यूजियम के बारे में, तो म्यूजियम जैसे इशू पे भी हम लोगों ने बात की। आर्ट वर्क्स को म्यूजियम के बाहर ले जाना, गैलरी के बाहर ले जाने जैसे इश्यूज पे बात की। तो इस तरह से तमाम हम लोगों ने कोशिश ऐसा किया कि हम लोग के लाइफ से, जीवन से कला किस तरह से गहरी जुड़ी है, इस बात की पड़ताल बोध गया बिनाले में करने की हम लोगों ने कोशिश की। यह एक संक्षिप्त बात है बोध गया बिनाले के बारे में, जिसके तहत हम लोग बोध गया बिनाले करते हैं। बोध गया बिनाले कोई आर्ट एग्जीबिशन की तरह मात्र नहीं है, इसको बहुत हम लोगों की समझदारी बहुत क्लियर है। और हम लोग शायद आज इस फोरम में भी आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि हम लोग कोई आर्ट एग्जीबिशन मात्र नहीं करना चाहते हैं, कोई बड़ा एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसके जरिए हम लोग एक टू एक डिस्कोर्स हम लोग में जाना चाहते हैं। जिस तरह से इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी बोध गया बिनाले के जरिए उस बड़े काम में जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, उस काम में एक छोटा सा योगदान की तरह हम लोग बोध गया बिनाले के काम को देखते हैं। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं सीमा कोहली जी को। सीमा कोहली जी हमारे इस क्यूरेटर के चयन के कमेटी में आप मेंबर रही हैं और आप नोटेड आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं। और बालन नाम्बियार सर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस कमेटी की, और काफ़ी सारे आर्टिस्टों के नाम पे विचार करने के बाद उन्होंने फाइनली जिस क्यूरेटर का नाम इन्होंने तय किया, तो उस कमेटी में सीमा कोहली जी थी। सीमा कोहली जी पिछले बिनाले से जुड़ी भी रही हैं, तो हम लोग उनसे चाहते हैं कि उनकी बातों को सुनें और बोध गया बिनाले के इस प्रोसेस में भी किस तरह से गई उनकी बातों को भी जानें। सीमा जी। Thank you. Hello everybody. Thank you so much for giving me the space to talk. Actually मेरा जो एक इंटरेक्शन बोध गया बिनाले के साथ है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से रहा, बिकॉज I knew Vinay for a very long time and I was actually very taken aback by his enthusiasm that he was involved in bringing about art in his own space, in his own state, taking out time from his daily work, which is a difficult and a demanding thing for anyone. And if you're an artist yourself, then you do take out time for anything, but not to pursue art as an artist, but as to take it forward, to bring it to the people and to his own people, to his own state and his own city. And beyond that, I was really, I liked the enthusiasm with which he was working. And when he asked me that, would you be interested in being a part of it, I said yes, in whatever capacity I can, because I am not a curator, I'm an artist, and I'm not even an orator over here like I'm supposed to speak. But he invited me to the Biennale and I was there. It was very raw, and the fact that
ordinary people were just walking in, who were not, I think, exposed to contemporary art at all. I think art is very deeply seeped in Bihar at all levels. All the walls, everything is painted. We cannot take it away from from Bihar, that art has been introduced or in some different way. But they all have some sensibility of admiring all their walls, the way they carry down their traditions and their homes. I went to Madhuban with Vinay only, and to see their daily rituals, how they do it, it is with so much of color. So it was the fact that you are just bringing them back to look at their own things and introduce them to a different kind of sensibility, which is probably introducing them to the world which is outside. And the outside world, we all are being introduced to Bihar. That was the connection that I felt, and I thought it was very important to bring about this Biennale and to bring everyone, all the artists together here, at whatever level we could do anything for the state. And we see the tourists from all over the world coming there for, of course, different reasons. But as artists, our language is different, and to bring forth that language to the people in our own way and understanding theirs, because that was the purpose, I think, that is the purpose of any Biennale, to work there as artists, be in that space, live for some time, create work which is not only on walls but in spaces, other spaces, as performance or installations. And that was being done. And I actually told him that I'm so impressed. I was there for just a very few days, and I just told him, I said, this is fantastic with such limited resources, because there were very limited resources as far as financials are concerned. But in those limited resources, everyone was putting in their effort. His team was fabulous. They were all young people, along with his family. His family is here also again. I've just seen them and met them. They all are involved. Everyone's family was involved in the Biennale, looking after the artists, trying to put up whatever they can, bringing in schools, bringing in children from all kind of, I think, levels of existence that they belong to. It was really a nice sight to see that. So here I am endorsing it again, and in fact requesting everyone, whoever can be a part of it at whatever level, to be a part of this kind of an endeavor. And we did have a kind of a little say in choosing the curator, because we wanted somebody to be able to have a worldview of art and to bring it forward to Bodh Gaya Biennale. I would request Chanchal ji to come and please announce the name. And आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बताया गया, हम लोगों ने पहली बार 2015 में यह सोचा, कुछ लोगों ने मिलकर, कि बोध गया में हम लोग बिनाले के अपने सपने को शुरू करें। काफ़ी, जैसा कि उन्होंने बताया, काफ़ी कम रिसोर्स में और बगैर किसी सरकारी सहायता के कुछ कलाकार, कुछ सिंपैथाइज़र, कुछ अप्रिशिएट करने वाले लोग, उनकी मदद से हम लोगों ने 2016 में पहली बार बोध गया में दिसंबर के सेकेंड हाफ में 16 से 23 दिसंबर तक हम लोगों ने फर्स्ट एडिशन किया बिनाले का। करीब 100 कलाकार थे और लगभग 20 देशों के लोगों ने उसमें भाग लिया था।
फिर 2018 में हम लोगों ने सेकंड एडिशन किया, उसमें भी लगभग अमूमन उतने ही कलाकार, उतने ही देशों के लोग आए थे, आर्टिस्ट। जैसा कि बताया गया, पहले में हम लोगों ने प्रथम एडिशन का थीम जो रखा था वह पीस पर था, शांति पर। दूसरा हम लोगों ने एक बहुत ही मौजूद विषय माइग्रेशन, उस पर हम लोगों ने पिछली बार रखा था। अब अगला जो होना है वो दिसंबर 2020 में थर्ड एडिशन होना है। जैसा कि पहले भी लोगों ने बताया, हमारे इस बिनाले का ऑब्जेक्टिव यह नहीं है कि हम सिर्फ एग्जीबिशन करें विजुअल आर्ट्स का या परफॉर्मिंग आर्ट्स का या कुछ लोगों का। हम इस पूरे गेम को डिमिस्टिफाई करना चाहते हैं। आप अगर कभी बिनाले के समय बोधगया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी एग्जीबिशन को, किसी भी पेंटिंग को वहाँ के लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और आप देखें कैसे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, दे हैव देयर ओन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स, एंड दैट कम्स इनटू प्ले ब्यूटीफुली व्हेन यू सी दीज पीपल गोइंग एंड वाचिंग अ पीस ऑफ पेंटिंग और अ स्कल्पचर और अ इंस्टॉलेशन। हम वो चाहते हैं कि लोगों को, खासकर आने वाली जनरेशन को, इससे कला और संस्कृति से जोड़ें। और यह एक यात्रा के समान है, यह यात्रा चलती रहेगी। इसका कोई मुकाम ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ को छू लिया तो आपकी यात्रा समाप्त हो गई। ये कंटिन्यूअस यात्रा है, अपने आप में यह एक परफॉर्मेंस है। जो हम लोग जितनी चीज़ें कर रहे हैं, ये अपने आप में यह एक एक्टिविटी है या गतिविधि है। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2 एडिशन में भारत के कोने कोने से कई अच्छे अच्छे कलाकारों ने, कई लोगों ने न केवल अपने इसमें शिरकत की, बल्कि हमें काफ़ी प्रोत्साहित भी किया, हमें काफ़ी एनकरेज भी किया। अब हम लोग अपने सपना को हल्का सा बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस पर कुछ और अच्छे और व्यवस्थित तरीके से 2019 में ही 2020 की कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ले। इसलिए हम लोगों ने पहले सोचा कि क्यूरेटर के रूप में एक हम नाम का चयन कर लें। हम लोग का सौभाग्य है कि सीमा कोहली जी, बालन नाम्बियार जी और कई आर्टिस्ट पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ आते रहे हैं। उनका सौभाग्य मिलता रहा है, उनका गाइडेंस हमें मिलता रहा है। एक बात मैं बता दूं कि पिछले 6-7 सालों में बिहार में अगर आप देखें, आर्ट कल्चर के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। मैं रिलेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ, किसी दूसरी जगह से तुलना नहीं होनी चाहिए, दूसरे राज्य से तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का प्रयास रहा है। और आप देखेंगे कई हम लोगों ने वर्कशॉप, एग्जीबिशन, टेम्परेरी सोलो, कई कार्यक्रम किए। और वहाँ के, जैसा कि बताया आपको, वहाँ एक मधुबनी में आप जाएंगे तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप जानते होंगे। मधुबनी में 2 गांव है, रांटी और जितवारपुर। अगर आपको रंगों का खेल और आर्ट कितना घरेलू हो सकता है अगर देखना हो, और कैसे जीवन के हर पहलू, सुबह उठते हैं से लेकर रात में सोने जाते हैं, तब तक आर्ट आपके लाइफ में कैसे रह सकती है, अगर देखना हो तो आप वहाँ चले जाइए किसी दिन। इट्स एन ओपन इन्विटेशन, एनी डे ऑफ द ईयर। आप 365 दिन में किसी भी दिन चले जाइए रांटी या जितवारपुर, आप देखेंगे कैसे वो जीते हैं। दे लिव दिस फॉर्म। इंसिडेंटली मैं भी मधुबनी जिला से ही आता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। शादी होती है तो शादी के पहले दिन से लेके पूरे आयोजन तक हर कमरे में अलग अलग थीम के अलग अलग पेंटिंग होते हैं, और बिल्कुल घर की महिलाएं बनाती है, कोई बाहर से कोई आर्टिस्ट नहीं आता है अलग से। तो ये उनके रंग ढंग में रचा बसा है, और ये हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है। चाहे वो बिहार में 4-5 सिक्की कला, मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, भोजपुर में एक हमारा अलग फॉर्म है, पेपर मैशे के कई कलाकार आप देखेंगे। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अच्छे अच्छे कलाकार मिल जाएंगे। आप चले जाइए गया में एक पत्थरकट्टी नाम का जगह है। पत्थरकट्टी का मतलब ही है पत्थर को काट कर मूर्तियां बनाते हैं। बिल्कुल देखिए क्या कितनी जीवंत, और आप कहिए उनको,
अगर कुछ आप गाइड कीजिए तब देखिए उनकी कितनी जीवंत मूर्ति कला हो जाती है। तो हम लोग इस एडवांटेज को लेवरेज करना चाहते हैं, वी वांट टू लेवरेज दीज फैक्टर्स इन आवर फेवर। तो इसलिए हम लोग जब भी करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को, वहाँ के जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे जो आर्टिस्ट जो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज बोधगया बिनाले 2020 के लिए एक हम लोगों ने कमेटी ने निर्णय लिया। इस कमेटी में अध्यक्ष थे बालन नाम्बियार जी और सीमा कोहली जी थी और मैं भी था। हम लोगों ने बोधगया बिनाले 2020 के लिए क्यूरेटर के रूप में आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए सुश्री अनिंदिता दत्ता के नाम का चयन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आइए। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह बस कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ें। जुड़ने के बहुत मायने होते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए आनंदिता जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आनंदिता दत्ता जी को कि 2 शब्द अगर वो भी रखना चाहें तो। Hi everyone. First, I would like to give thanks to all the committee members for giving me such a amazing opportunity to experience Bodh Gaya Biennale 2020. एक और बात बोलना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और बिहार में ही बड़ी हुई हूँ। 1994 में मैं बिहार छोड़ी। सो बेसिकली पूरी ज़िंदगी बिहार में कटा और उसके बाद मैं एजुकेशन के लिए बाहर गई। सो देयर इज़ अ स्पेशल कनेक्शन विद बिहार एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद अमेजिंग पीपल and looking forward to have a fabulous 2020 Bodh Gaya Biennale. So that's it. Yeah. इस छोटे से स्लाइड शो के बाद ये कार्यक्रम यहीं खत्म होगा, फिर सब लोग चाय के लिए आमंत्रित होंगे। इससे पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम लोग के बोध गया बिनाले के फर्स्ट एडिशन के को क्यूरेटर श्री राहुल देव को हम लोग बुलाना चाहते हैं। राहुल देव। It's a great pleasure to give vote of thanks to distinguished panel, Chanchal sir, Vinay sir, Seema Kohli ji, Priya Venkatraman ji and Anandita. And also the fabulous audience and the journey which we started in 2016 will go on and on and on. So I really want to thanks, and it's a great pleasure and look forward to see you all in Bodh Gaya in 2020. Thank you. मुझे लगता है कि हम लोग केवल इस स्लाइड शो के खत्म होने तक यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद ये बात यहीं खत्म होगी। उसका सब लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं बाहर। शुक्रिया। और मैं खासतौर पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जैसा राहुल ने भी कहा कि वैसे तमाम हम अपने बीच देख रहे हैं, इस देश के महत्वपूर्ण आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट भी हमारे बीच मौजूद हैं। न केवल आर्टिस्ट, फिल्म राइटर्स, क्रिटिक्स, सब लोग मौजूद हैं। हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनको हमने आमंत्रित किया, जिनको नहीं किया तो उनको हम लोगों को यानी कि कैनवस को हम लोगों को क्षमा करेंगे। और वो आप आए वहाँ, हम लोग आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2020 के बिनाले में हम सभी लोग मिलेंगे वहाँ बोध गया में। धन्यवाद।